This was second episode of Open Notebook. Before moving further, मैं आपको मेरे कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ which I like to learn further, जो आपको यहाँ मिल सकते हैं. The one of them is computational neuroscience. ये जो स्पेसिफिक फील्ड है ये डील करती है बेसिकली in between of computer neural networks and actual brain neurology के बीच में, right? It have so basically ये फील्ड ट्राई करती है आर्टिफिशियल ब्रेन या फिर उसकी फंक्शनिंग को लेके, right? It is quite new field and it is very interesting to me, so that's why this is one of the subjects which I want to read along, right? The second is data science, so I'm also interested in data science, and it is one of the fundamentals which is required for computational neuroscience. तो data science भी हम देखेंगे. AI and software developments, I think maybe कुछ basic part, but majorly AI and not the typical AI tools. Maybe we will more talk about the fundamental or the what I can say theoretical sciences behind the AI. Then education, this is one of the subjects which I want to further learn about and maybe I want to know about. So education is one of the things which I want to see how it shapes different societies, how it grows, how it changes, and what can be the I can say factors which definitely cause the stability and the growth of a society. So हम education में उस वाले एंगल से देखेंगे इसे. And there is theoretical physics. So I always love theoretical physics. तो उसे भी देखा जाएगा. There are psychology and philosophy. So I love all those subjects and मैं आपसे ट्राई करूंगा कि हम ज्यादातर ऐसा वर्कशॉप इसे करें. सो वेन एवर आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग we'll just record it, which is the whole idea of open notebook, and हम उसको एक आर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे उसी में, एंड देन लेट्स सी, राइट? तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं which is quite interesting. So okay, let me tell you the fundamental idea behind it. Okay, this is one of the most known papers in physics, which is called the spatial and the general theory of relativity. Relativity, okay, by Albert Einstein. So I think this is one of the most known papers in in the like in the world of theoretical physics and the fundamental physics, right? I don't know. I think हो सकता है कि okay, I'll try to keep it as simple as possible, and जो चीज़ें मुझे नहीं पता है I'll try to make it clear कि मुझे वो नहीं पता है, because ऐसा बहुत possible है in this type of field जहाँ आप कोशिश करो कि शायद मुझे वो आता है जबकि वो मुझे नहीं आता, तो I'll try to make it very simple, right? तो definitely I know something about spatial theory of relativity and the general theory of relativity, वही जो हमने स्कूल टाइम पे पढ़ा होता है. But it is always very like it always create a curiosity in my mind at multiple levels कि ऐसा क्या स्पेशल रिलेशन निकाल पाए आइंस्टाइन इस पेपर के थ्रू, जिसकी वजह से उससे पहले की फिजिक्स और उसके बाद की फिजिक्स को दो अलग हिस्सों में डिवाइड करा. तो यहाँ ना कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेम्स हैं जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी करते हैं, राइट? जिसमें से एक सबसे पावरफुल क्लेम आई थिंक जो है वो ये है कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स,
इट इज अ कर्वेचर ऑफ अ स्पेस एंड टाइम। ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, या फिर कंट्रोवर्शियल नहीं बट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव एंड आउट ऑफ थॉट, मतलब इसका मीनिंग क्या है, राइट? जब तक बात ये चल रही थी ग्रेविटी एक फोर्स है, तब तक शायद हम समझ भी पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बेसिक ऑब्जर्वेशन के दायरे में आता है। जैसे कि किसी भी चीज का नीचे गिरना, वो गिरती इसलिए है क्योंकि क्योंकि देयर इज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई वो नीचे गिरा। दिस इज व्हाट न्यूटन सजेस्ट, राइट? तो ऐसा क्यों है कि अगेंस्ट दैट कमेंट आइंस्टाइन को जाना पड़ा और उन्हें ये बोलना पड़ा इस पेपर में स्पेसिफिकली कि एक्चुअली ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, इट इज अ कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम। एंड एक बहुत ही अजीब बात कि हम जब बात कर रहे हैं ग्रेविटी को डिफाइन करने की, तो मुझे स्पेस टाइम के कर्वेचर की क्यों जरूरत पड़ रही है, राइट? अगर मैं उसे सिर्फ स्पेस का कर्वेचर कहता तो वो गलत क्यों हो जाता, मुझे कभी ये ठीक से समझ नहीं आया। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। आई गो थ्रू दिस पेपर एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज अ लॉन्ग पेपर, एंड इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे ऐसे रेफरेंस पॉइंट्स हैं जो शायद मुझे नहीं पता है, बट टू बी ऑनेस्ट ये काफी सिंपल पेपर लिखा हुआ है, दिसंबर 1916, एल्बर्ट आइंस्टाइन। काफी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल मुझे ये काफी पॉइंट्स में नहीं समझ में आया। एंड मैं बेसिकली इसमें से आज जो समझने की कोशिश करना चाहता हूँ वो ये है कि आइंस्टाइन इतना श्योर होके ये क्यों कह पाए कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, वो स्पेस टाइम का कर्वेचर है। और मैं उसे बस मान इसलिए नहीं लेना चाहता कि किसी एक शख्स ने ऐसा कहा कि ये होता है। हाँ, मतलब हमारे पास उसके क्या एविडेंसेस हैं, क्या मॉडर्न साइंसेस उस चीज को एज एन एम्पेरिकल डेटा समझ पाई हैं। अ, हम इन इन चीजों पे बात करना चाहेंगे, शायद समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज किसी भी चीज को लिटरली बाय बुक कंसिडर कर लेना के अगेंस्ट ही हम ओपन नोट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम बेस्ड ऑन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग हम जाएंगे उन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के अंदर, ताकि हम उन्हें एज एन कॉन्सेप्ट समझ सकें इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। क्योंकि एज अ वर्ड आप ये बात याद रख सकते हो कि ठीक है, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं होती है, ग्रेविटी इज अ कर्वेचर इन स्पेस एंड टाइम। पर इसका मतलब क्या है? क्यों ऐसा है कि हम ये बोल रहे हैं कि इट्स अ कर्वेचर इन स्पेस एंड टाइम? ऐसे कैसे प्रूफ हो सकता है, राइट? तो ओके, मैं इसका सिंपलेस्ट वर्जन जो मेरे लिए पॉसिबल था वो हम ट्राई करेंगे, एंड लेट्स सी इफ वी आर एबल टू कंक्लूड एट एनी गिवन पॉइंट, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ आज के टाइम पे जो सबसे इजीएस्ट टूल है उसके पास, राइट? एंड मैं आपको मेरा ये प्रोसेस बताता हूँ व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। हमने चैट जीपीटी को भी बोला है कि फिजिक्स के जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चेक पॉइंट्स हैं इन द होल पास्ट, हम उन सबको गो थ्रू करेंगे, राइट? तो आई एम टेलिंग कि फ्यूचर और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो लेट्स सी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटिविटी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन, राइट? एंड इसमें जो दूसरा बहुत पावरफुल क्लेम था वो ये था कि इवन लाइट कैन नॉट escape ग्रेविटी। मुझे ये बात
क्योंकि अब इतना ज्यादा इसे साइंस बैक कर चुका है, करेक्ट। तो मैं इसे कभी प्रूफ नहीं कर पाया, या फिर मतलब क्योंकि सब कह रहे हैं इसलिए मुझे भी कह देना चाहिए। मैं इस चीज को नहीं समझ, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये पेपर लिया। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू, कि हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है, करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम इससे पूछते हैं कि based on this paper, help us understand why Eienstien is the correct spelling. तो मुझे Einstein claims that gravity is space and curvature instead of two. इसमें ये कुछ ऐसा कह रहा है कि आइंस्टाइन में काम करता हूँ बिकॉज मैं सीधा पढ़ूंगा तो मैं किसी और की भी हेल्प ले लेता हूँ। Let's like this, and those, and ठीक है, ओके। मैं इसको स्प्लिट करना चाहता था। Right, ठीक है जानिए। Generates from the Gemini. और understand, ये मुझे नहीं समझ में आया। Understand emotional is gravitation। ये किसने प्रूफ किया, कैसे प्रूफ किया? Einstein states starts from a simple but profound empirical fact: inertial mass equals to gravitational mass. अब ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? This is discussed in part 2, chapter 20 of this book. In this Newtonian physics, inertial mass resists acceleration. Okay, that is correct. Oh yes, yes, yes. Now I got it. So basically, यहाँ पे जो सिंपल सी बात प्रूफ करने की कोशिश की गई वो ये है कि जो आपका एक्सेलरेशन है मास पे जो पड़ता है, राइट, जो न्यूटोनियन फिजिक्स में बात हो रही होती है, जो कि एक बहुत सिंपल से स्टेट से बात चलती है, विच इज इफ एनीथिंग इज इन रेस्ट इट कीप्स इन रेस्ट, इफ एनीथिंग इज इन मोशन इट कीप्स इन मोशन until the external force applies on it। तो ये उस चीज की बात चल रही है कि टेक्निकली उसी ग्राउंड्स पे आपका इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, राइट, वो काइंड ऑफ सेम होता है। दे आर ऑलवेज इक्वल टू extraordinary precision. This means all the objects fall the same way in the gravitational field regardless of the mass or composition। ये ये न्यूटोनियन फिजिक्स में भी बहुत क्लियर था कि आपका जो जी है, राइट, जो ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन है या फिर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ग्रेविटी है, वो हर ऑब्जेक्ट पे सेम लगती है, राइट? सो बेसिकली इट इज मेजरली टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट, जिसमें वो ये कहते हैं कि inertial mass is basically equals to gravitational mass. Correct? This means all the objects fall the same way in the gravitational field, regardless of the mass or composition. तो क्योंकि ऐसा हो रहा था, तो ग्रेविटी ऑलरेडी कन्वेंशनल फोर्स के लॉज को फॉलो नहीं कर रही थी, राइट? ऐसे क्यों, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। देखो, कोई भी फोर्स है, वो जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, तो उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो फोर्स अपनी बिहेवियर को चेंज करती है, या फिर एटलीस्ट जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है इस बेसिस पे कि वो खुद की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि सॉलिड है, हैवी है, यानी कि हाई इन मास है, लो वॉल्यूम है, मैं उस पर एक स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई करूंगा, तो उसमें जो होने वाले चेंजेस या मोशन है वो डिफर करेंगे अगर मैं सेम वॉल्यूम के लाइट मास के ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स अप्लाई करूँ। क्या ग्रेविटी के साथ ऐसा नहीं होता? एंड आई थिंक दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से आइंस्टाइन को न्यूटोनियन फिजिक्स में अवेलेबल ग्रेविटी से प्रॉब्लम थी। हम्म। सी, यहाँ पे एनर्जी लॉसेस भी बोल रहा है, this is the characteristic constants of a body that determines its resistance to acceleration when a force is applied. Force equals to inertial mass into acceleration. Cool, cool. This is a constant that determines the force extended on a body by a gravitational force. Force equals to gravitational into intensity of a gravitational field. ठीक है, that's correct. The core argument of equality, Einstein points out, most valuable property of gravity, all bodies moving slower and its influence receive the same acceleration regardless of their material or physical state. For example, piece of lead and a piece of wood fall in exactly the same direction. Characterization is always the same of any body in a given gravitation. Gravitational mass to inertial mass must be the same for all bodies. Not of mass, but inertial mass. ठीक है, करेक्ट। दैट इज समथिंग जो हम इससे डिड्यूस कर पा रहे थे। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, एलिवेटर आर्गुमेंट। One of the most important thought experiments, gravity can be transformed away. So क्या मतलब है? Einstein then introduces what later become the famous as equivalence principle. Thought experiment. You are inside a closed elevator. Case A, elevator is at rest on Earth. Okay, okay. Case B, elevator is accelerating upward in the empty space. ठीक है जी? No experiment inside can distinguish between these two cases. अगर मैं अर्थ पे एक एलिवेटर को रेस्ट पे रख दूं, या फिर मैं एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ, अच्छा, एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन के साथ एलिवेटर को एम्प्टी स्पेस में छोड़ो, तो आप किसी भी तरीके से ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आप अर्थ पर नहीं हो, या फिर इन दोनों में से आप कौन से स्टेट पर। फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। इंटरेस्टिंग, राइट? What we call gravitational force can be replaced by the acceleration of a reference frame. Okay, 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 right. जिस चीज को हम ग्रेविटी बोलते हैं अर्थ पे, करेक्ट, जो कि यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड लग रही होती है, अगर मैं किसी एक बॉक्स के रूम को, स्पेस को 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करूं, तो उसके अंदर का एटमॉस्फेयर और
अर्थ पे जो एलिवेटर एग्जिस्ट कर रही है रेस्ट पे, उन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अगर ग्रेविटी फोर्स होती तो ऐसा नहीं होता। दैट इज व्हाई इट इज सेड दिस इज नॉट ट्रू फॉर द फोर्सेस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो बिहेव करती है ना। हम्म। A force that disappears just by changing coordinates is not a real force in the usual sense. ओके, मुझे लगता है मुझे ये और समझने की जरूरत है, तो एक बार देखते हैं। Explaining this in detail. In his book, Relativity, Special and General Theory uses the chest or elevated argument to demonstrate the gravitational field can be transformed away, choosing a specific normal relations term. Okay. Einstein asked us to imagine a large chest like it is a region of empty space far from any significant masses. Initial state for an observer inside smaller. Okay, okay. They would float unless tied down. Correct. The acceleration. The being begins pulling the chest with constant force, causing it to move upward with uniform acceleration. The internal change in the chest will feels a force pressing them to the floor. If they release an object, it falls to the floor with an acceleration that is independent of the physical state. So it's transformed into the ability to eliminate the physical effects in a field by changing one's reference frame. Einstein explained this through the inwards of the chest argument. Gravity is acceleration. To observe inside the accelerated chest, the effects are indistinguishable. From standard gravitational field, this means acceleration has been transformed into gravity directly, cancelling gravity. Conversely, if you are in a gravitational field like on Earth and you enter a frame that is freely falling, the gravitational field effectively disappears for you. In freely falling elevator, objects would be float relative to you and you would feel weightlessness. In this specific freely falling reference frame, the gravitational field has been transformed away. हम्म, देखो पहला आर्ग्यूमेंट भी मुझे समझ में आया, राइट, बट सेकंड आर्ग्यूमेंट इज मोर इंटरेस्टिंग जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर एंड आई थिंक दोस्त हु एवर फील इट, जिन्होंने नहीं किया वो ट्राई कर सकते हैं। टेक्निकली वुड डिसाइड कि अगर आप किसी एलिवेटर पे जाओ तो वो थोड़ा स्पीड से नीचे आती है तो आपको थोड़ी देर के लिए वेटलेसनेस फील होती है, करेक्ट। ऐसा कई एक्सपेरिमेंट्स में एज एन रियल एग्जांपल्स देख सकते हो अवेलेबल हैं। जब जेट एक स्पेसिफिक एंगल पे नीचे लैंड करता है तो वहाँ ग्रेविटी जीरो हो जाती है कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। दैट इज टॉकिंग अबाउट फ्रीली फॉलिंग रेफरेंस फ्रेम। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि कोई भी और फोर्स जो एग्जिस्ट करती है वो ऐसा बिहेव नहीं करती है कि जैसे ही मैं उसका रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दूं, जैसे कि फॉलिंग एलिवेटर, तो वो कैंसिल आउट हो जाए। मैग्नेटिक फोर्स अवेलेबल होती है, मैं उसको किसी भी स्पीड में गिराऊं पर वो जो फोर्स अप्लाई कर रही होगी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो चेंज नहीं हो जाएगा, करेक्ट। दैट इज एग्जैक्टली सेम फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
charge, right? So that is the basic argument. Just to say, minimum thing what we can say is gravity is at least not a force, correct? That's the basic idea. कि यहाँ से हम ये तो प्रूफ कर पाए कि gravity force नहीं है. Whatever it can be, but it's not a force. Right. Now let's try to move to the next point where he says why Newtonian gravity cannot survive the insect. What is uncertain satisfactory about classical mechanics and Newtonian gravity? हमारी जो स्पेशल रिलेटिविटी है वो कहती है physics must look the same in all the inertial frames. आज फिजिक्स के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को देखो वो सभी inertial frames में होनी चाहिए. इसमें not unified into space time. और दूसरी जो स्पेशल रिलेटिविटी करती है वो बेसिकली पूरे रेफरेंस को कन्वर्ट कर देती है इंस्टेड ऑफ स्पेस एंड टाइम की जगह एक यूनिफाइड स्पेस टाइम. इस बात का मुझको कोई मतलब नहीं समझ में आया ऐसा क्यों. मतलब ये तो कंफ्यूजन हो गया ना, राइट? क्या यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन है जो बात करता हो हमारे कहाँ पे है? ये बोल रहा है चैप्टर 21 के पार्ट 2, चैप्टर 21 पार्ट 2, चैप्टर 21 पार्ट 2. ये पार्ट 3 है. The solution of the problem is gravitational on the basis of the general principle of relativity. If the reader has followed our previous consideration, he will get further difficulty in understanding and clearing the solution of the problem of gravitation. Starts with considering the equilibrium domain, that is the domain in which there is no gravitational field relative to the equilibrium reference body K. The behavior of the maser and the clocks with the reference of the K. The K is known as special theory of relativity. Likewise, the behavior of the isomer and the pointer almost in that or more uniformly and in straight line. Okay, so basically मैं क्या ढूंढ रहा हूँ just to let you understand. लेकिन यहाँ पे क्लेम है, राइट? मुझे उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं मिल रहा है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्पेस एंड टाइम आर यूनिफाइड इनटू स्पेस, बिकॉज ये जर्नी ही हमने से स्टार्ट की ना कि हम स्पेस टाइम को अलग अलग क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, हम स्पेस टाइम ही कंसिडर करते हैं. हालांकि हम अभी जिसको एंटर कर चुके हैं दैट इज मोर अबाउट कि ऐसा क्यों है कि हम ग्रेविटी को कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम मानते हैं इंस्टेड ऑफ फोर्स, राइट? तो वहाँ पे एक अगला पॉइंट है, हालांकि मैं अभी इसे एज अ वर्ड ही कंसिडर कर रहा हूँ. मुझे ये नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों बोल सकता हूँ, राइट? Acts instantaneously is defined as a force is in a space and time, not on them. Okay, gravity behaves like acceleration. That's correct. Acceleration is a frame dependent. Correct. But forces are supposed to be frame independent. Physical independent. हाँ सेम चीज मतलब ठीक है. ये तीन जो कंक्लूजन है इस पे मैं अलाइन हूँ क्योंकि हमने अभी जो बात की ना कि फोर्सेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाहर ही होना चाहिए, उसके साथ रखे बिना कोई खास मतलब नहीं बनता उसका, राइट? Geometry replaces force, the curved space-time idea. Correct. The core idea ये था कि in spatial relativity, space-time is flat. Okay. In general relativity, space-time can be curved. मुझे मैं ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये क्यों है मुझे ये जानना है. Matter tells space-time how to curve.
Our space-time doesn't matter how to move. This removes gravity also force and activity. मैं बिल्कुल नहीं समझा ये वाला पूरा पॉइंट है मेरे लिए प्लान किया because this is something what I want to understand why instead of in a page I was looking. Free fall reveals the truth. Motion without force. Einstein emphasizes that it is within survey. Freely falling body experiences no force. Technically, yes, no force of gravity. Correct. This is stated implicitly throughout Part 2 quadrant interpretation. In the Newtonian physics, falling means being pulled by gravity. In Einstein's theory, falling means following the straightest possible path, a geodesic in curved spacetime. Standing on Earth feels a force. Falling does not feel a force. For gravity is not cause of a motion. It is a geometry of a spacetime. नहीं जी बिल्कुल नहीं समझा ऐसे कैसे ये कैसे कंक्लूड किया मैं इस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ हम क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं देयर फॉर राइट ठीक है और थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं वाई कर्वेचर आर नॉट अ न्यू फोर्स फील्ड नहीं फोर्स फील्ड क्यों नहीं माना गया ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने इस फॉर्म में नहीं सोचा था could have introduced a new gravitational field force but he expressly avoided this मना करते हैं है ना क्योंकि राइट अगर वो कर्वेचर पे था तो हमने ऐसा क्यों नहीं बोला कि एक नई टाइप ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड है इंस्टेड ऑफ दैट वी सेड इट्स अ जियोमेट्री राइट he specifically proposes कि ये जियोमेट्री है instead of force and that is something which is interesting affects all objects identically correct gravity can be locally removed by changing the frames यहाँ changing the frames वो है falling free falling right then gravity alters clock and rollers time dilation length contradiction ये time dilation वाला concept I remember right तो मान लेते हैं but third point मैं अभी clear नहीं है these effects naturally only space and curvature explains all the four simultaneously नहीं ना ना जी ना बिल्कुल नहीं समझा मुझे थोड़ा सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है फाइनल लॉजिक चेन क्या बोल रहे हैं क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट सेम तरीके से गिरते हैं तो ग्रेविटी यूनिवर्सल हो जाती है ये बात सही है और इससे ये कर्वेचर्स प्रूफ नहीं होती and यूनिवर्सिटी सॉरी यूनिवर्सैलिटी implies gravity is indistinguishable from acceleration और तो उसने उसे बिहेवियर में कन्वर्ट कर दिया मान सकते हैं मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है acceleration is geometric coordinate based not a force बहुत बड़ा स्टेटमेंट पर ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता acceleration is geometric acceleration is geometric really acceleration is geometric not a force acceleration की definition क्या बोलती है acceleration बोलता है velocity या फिर rate of change of motion correct rate of change of motion rate of change of motion is basically acceleration right let me see based on this what is the time of acceleration ideally ये चेंज नहीं होनी चाहिए थी right but acceleration is geometric ये क्या है ना थोड़ा सा डिफरेंट है मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है तो समझिए इन आइंस्टाइन्स relativity solution can be defined with a single sentence through the physical manifestation. That's the difference between the different bodies. Based on the provided text, acceleration can be understood through these key points. ठीक है जी describe uniform motion as a constant velocity and direction but extension of body is
in a state of non-uniform motion acceleration, it's velocity. हम्म वो वैसे हम कराते थे ना फॉर्मूले में v as a direction like velocity is always the direction correct तो acceleration उसकी बात चल रही है acceleration is geometric तो वो डायरेक्शन की वजह से उसको geometric में कंसिडर कर रहे हैं क्या हाँ लेकिन फिर भी acceleration फोर्स नहीं है और वो ज्योमेट्री भी नहीं मतलब मुझे ऐसे ज्योमेट्री भी नहीं लगते therefore gravity is not a force हाँ तो ये तो हम चलो मान रहे हैं कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है मैं इसके लिए जो सबसे पावरफुल आर्गुमेंट मानता हूँ अभी तक की स्टडी में वो यही हुआ कि आइडियली अगर कोई चीज फोर्स है राइट तो उसे जस्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस में अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहिए राइट वो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है इवन तो वो किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस में देखा जाए उस पे वो फोर्स अप्लाई होगा ही राइट जैसे मैग्नेटिक फोर्स है मैं किस कहाँ उसे चेक कर रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही मैग्नेटिक फोर्स होगा राइट ये ग्रेविटी के साथ नहीं फॉलो हो पा रहा था दो मेजर ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटी की बात चल रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं चल रही है ग्रेविटी की बात चल रही है तो ग्रेविटी जो है वो अगर वो मास अर्थ की ग्रेविटी की बात चल रही थी तो वहां पे जो है वो एज अ फोर्स काम नहीं कर रही है यहाँ तक मैं ठीक हूँ मतलब एटलीस्ट दिस इज आई एम कंफर्म या फिर मैं वहां तक इसके साथ अलाइन हो सकता हूँ राइट मोशन अंडर ग्रेविटी मोशन अलोंग कर्व स्पेस टाइम ये मैं कर्व स्पेस टाइम से ज्यादा वो उस वाले एग्जाम्पल पे जाऊं जहाँ पे ऐसा बोलता है कि देयर इज एलिवेटर जो कि स्पेस में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है राइट तो भी मेरा ये प्रूफ नहीं होता कि मोशन अलोंग कर्व स्पेस टाइम मोशन अंडर ग्रेविटी होता है मैं इसको नहीं अभी तक तो नहीं कंक्लूड कर पा रहा हूँ राइट मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है लेकिन मैं ये कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ कि वो मोशन अलोंग कर्व स्पेस टाइम मैं मैं अभी तक इस डेटा से ये कंक्लूड करना मेरे लिए फिजिबल नहीं पा कर्वेचर रिप्लेसेस फोर्स हाँ वो अगर आप ये स्टेटमेंट सही मान के फाउंड आप तो करेक्ट मानना पड़ेगा Einstein given gravity is a space-time curvature because what we experience as a gravity is actually a natural motion of the object in curved space-time, not a force acting on them. मुझे मुझे चलो there are many statements which comes directly and mean to understand why we consider space as a whole session. क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैं पूछ सकता हूँ राइट बिकॉज वी फोकस हियर ऑन क्वेश्चंस इसमें ना बहुत सारे ओपन पॉइंट्स हैं हमारे पास बट व्हाट दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन जिससे हम इस आंसर या इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की रेजोल्यूशन तक थोड़ा फास्ट पहुंच सकते हैं राइट लेकिन मुझे क्या पता है मुझे ये पता है कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है लेकिन उसे स्पेस टाइम कर्वेचर क्यों बोल रहे हैं मुझे ये नहीं पता करेक्ट सो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड देयर आर टू थिंग्स करेक्ट चलो इसे ना इसे थोड़ा सा बेटर वे में पूछने की कोशिश करते हैं which can be right
They will people thought experiment concluded that space and time is a geometric property which basically derives as gravity। क्या इसे थोड़ा सिंपल करके लिखा जा सकता है? मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहता, मैं बहुत सिंपली इस चीज को समझना चाहता हूँ। मेरे को बस ये जानना है कि वो कौन सा थॉट एक्सपेरिमेंट है जो आइंस्टाइन इस पेपर में कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मैं ये बोल पा रहा हूँ कि ये जो ग्रेविटी है वो बेसिकली कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम है। एक तो ये स्पेस एंड टाइम क्यों है, स्पेस क्यों नहीं है, मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। पहले तो हम ये वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, राइट? कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, राइट? सो आई स्पेसिफिकली मेंशन थॉट एक्सपेरिमेंट, देन आई सेड and let's try with a simple explain example point one point the complete chain of thought, right? Let's see. Early chapters on geometry and measurement. Geometry by itself is just logic, correct है? Geometry becomes physical only when we say the distance is measured by a rigid rod, correct? This time is measured by clock. That is also correct. Space and time again meaning only through physical measurements. That is also correct. Space and time depend on the observer. Can we see? Right, right. चलो, हाँ चलिए आप सोचते हैं इस बारे में। Space and time form a single structure. Thought source, meaning, oh my god, मैं इसे ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। मिन्कोस्की स्पेस टाइम। ओके, नहीं समझा मैं। Space and time cannot be separated. Space and time cannot be separated. Space and time cannot be separated. Yes, that is true if we are measuring it. हम जब भी उसे मेजर करेंगे हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ तक माना है, ठीक है? बट ये कहीं से प्रूफ नहीं करता कि ये कर्वेचर है। इवेंट्स आर डिस्क्राइब यूजिंग स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, नॉट स्पेस अलोन। ये बिल्कुल सही बात है। ये 100% करेक्ट है। ये जो सेकंड लाइन है, राइट? Physics happen in space-time, not space and time separately. मान लिया, मान लिया। इवन तो वो टाइम कितना भी छोटा हो, पर वो हमेशा स्पेस टाइम में होगा, ठीक है? Acceleration is fundamentally different from uniform motion, correct? Acceleration fundamentally different, okay? Thought experiment, protruding this, measuring rod shrink differently, geometry becomes non-Euclidean। मुझे नहीं पता है। This distortion is real, not measurement error. इसमें समझो से geometry of the measurements। नहीं समझा, नहीं समझा, बिल्कुल भी नहीं समझा, एकदम नहीं समझा। ये कैसे हुआ? चलो समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ गया मेरा दूसरा फ्रेम? मेरा दूसरा फ्रेम कहाँ है?
और मैंने उसे बंद कर दिया। ठीक है, दोबारा रन नहीं तो लेके आने की कोशिश करते हैं। नहीं समझा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज फंडामेंटल, ठीक है ये सही बात है, पर मेजरिंग रॉड्स, राइट, ऐसे कैसे हुआ, मैंने भी इसको था स्टार्स, स्टार्स नहीं जाना, चले हम चैट सभी को चैट इस पर आ गए हम। मुझे ये समझाओ, दस people explaining to thing those experiment and why and how it is equal to measure across different देखो, क्योंकि मैं यहाँ तक तो बात को समझने की समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता और किसी के लिए कितना कंक्लूसिव है या नहीं है, पर ये ये इस कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो ये कंफर्म करता है कि जब मैं एक्सेलरेशन में होऊंगा तो रॉड्स का साइज डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट सेटअप इज इमेजिन a circular disk rotating uniformly about its center relative to the non-rotating Galilean reference body. ठीक है, an observer is situated on the disk, okay, moving with it. Observer attempts to measure the disk's geometry using a standard measuring rod. ये भी ठीक है, how measuring rods shrinks differently. Includes that the rod's length changes depending on its orientation. The disk due to the Lorentz contraction result from the special relativity. ओके, मुझे समझना पड़ेगा व्हाट इज लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन, नहीं समझ में आया। टेंजेंशियल ओरिएंटेशन circumference. If observation observer applies the rod tangibility to the edge of the disk, the rod is moving in the direction of its length to the stationary system K. Special relativity models of the shortening direction of the motion. As far as judged from K, the rod is shorter than its standard length. Radial orientation, tangential, tangential, and radial. Okay, place the rod along the radius of the disk. The rod's motion is perpendicular to its length, its orientation. It does not experience any shortening as just from the K L equals to 1. ठीक है, मैं बेसिक आइडिया समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम इसे कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन ये है, राइट। लाइक फिजिक्स में हम नॉर्मली वो कंसिडर करते हैं ना कि एक स्टैटिक आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ ये कह रहा है कि एक रॉड है, क्योंकि अगर मैं टेंजेंशियल रखूँ तो वो किसी न किसी सेंस में श्रिंक हो जाएगी। वो श्रिंक क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो क्योंकि टेंजेंशियल है, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसके बेसिस पे उसकी विड्थ इंक्रीज कर जाएगी और उसकी लेंथ श्रिंक हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन ये इसके अपोजिट में ट्रू क्यों नहीं हुआ फिर, जब रेडियल में था तो उसकी लेंथ बढ़ी क्यों नहीं, ये एल इक्वल्स टू 1 क्यों रहा, राइट। द कंक्लूजन इन द ये मैं समझ गया,
influence does not hold. ठीक है. The very idea of the straight line loses traditional meaning. The space to continue. मुझे एक बात बताओ that why we or how know that when in when God is placed in the initial way, it gets shrink, but when it puts radially, it remains its length. L equals to 1. ठीक है सर. The edge of the rotating disk, it is moving in the direction of its own length. Correct. Lorentz contraction according to the spatial theory of relativity. Any rigid body moving with a steady v related to its stationary system K or shortening or contraction in the direction of its motion. The result, because the tangential rod is moving head first relative to the stationary observer, its length will be measured as less than its standard length. The radial position moves at this. Same as by radial just fraction. मुझे बस ये बताओ कि जो लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन है वाई लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन all rigid bodies are we saying there is no body which is not going to shrink. लेकिन assume कर लो अगर एक ऐसा substance exist करता है right जो shrink नहीं होगा तो how is it possible. मुझे यहाँ पे हमेशा ही क्यों कंसिडर करना पड़ रहा है right is a is presented as model of physical force versus our non-consequence of the nature of space time when viewed from different moving reference frames. Or was it based on the universal law of nature exhibited the constancy of the speed of light and principle of relativity? Universal consistency assumes that the general law of nature must be customary so that it remains the same when transformed between contradictory coordinate system using Lorentz transformation. Okay, so I think ये मुझे थोड़ा और कंफ्यूज कर रहा है based on its basic nature. तो मुझे लगता है कि आज की ये सेशन काफी लेंदी हो गया. हम इसे दोबारा कंटिन्यू रखेंगे in our next session. We will try to answer few fundamental questions. Let me write them down. Right. Understanding relativity. Einstein's relativity, right? करेक्ट. देखो हम क्या क्या जानते हैं इस बारे में. करेक्ट.
हम ये कंक्लूड करते हैं कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, राइट? फोर्स। और हम ये क्यों कह पाए हैं? हम ये इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि force needs to be seen based on the same for all the reference frames। तो बेसिकली अगर मैं सिर्फ रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दूं, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये कम नहीं होते, करेक्ट? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया है, ये चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए इसके बेसिक वर्जन में मैं ये कह सकता हूँ ग्रेविटी फोर्स होगा, करेक्ट? अब मैं कहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि अच्छा हाँ, वाई स्पेस एंड टाइम becomes स्पेस टाइम फैब्रिक। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? तो मैं फैब्रिक वर्ड में तरफ से एक्सटेंड कर रहा हूँ, हालांकि फर्दर ऑन कॉस्मोलॉजी में स्पेस टाइम कर्वेचर की ही बात होती है, या फिर स्पेस टाइम फैब्रिक की बात होती है, करेक्ट? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मतलब आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, ये कोई इंडिविजुअल एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। जब भी आप किसी भी टाइप के मोशन को कैप्चर करने की कोशिश करोगे, आप स्पेस को टाइम के साथ अलाइन करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स स्पेस टाइम फैब्रिक। राइट, राइट। यू कैन नॉट eliminate time when talks about motion, hence it becomes space-time, right? कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अगर बात करोगे तो हमेशा ही वो उस ग्राफ पे स्पेस टाइम में रिप्रेजेंट होगा, ना कि स्पेस एंड टाइम में। तो अंडरस्टूड। बट फिर भी मैं ये नहीं समझा कि हम ये क्यों कह पाए कि ग्रेविटी क्यों कह पाए, मुझे नहीं पता। मुझे ये समझना है। तो इसके लिए मेरे पास कई सारे क्वेश्चन हैं। इनमें से ये रोटेटिंग डिस्क वाला है, जिसमें आपके लॉरेंस कॉम्प्लेक्स ये अप्लाई होते हैं सभी रिजिड बॉडीज पे, पर क्यों होते हैं मैं पता नहीं, मैं इसमें लाइन नहीं पा रहा हूँ यार। मुझे और समझने की जरूरत है, मैं कई सारे पॉइंट्स ओपन छोड़ रहा हूँ, राइट? वो हम बाद में पढ़ेंगे दोबारा। कॉन्ट्रैक्शंस अप्लाइड और रिजिड, क्यों मुझे नहीं पता। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे इनके आंसर्स मिल जाएंगे तो मैं ये समझ पाऊंगा कि हम ग्रेविटी को स्पेस टाइम कर्वेचर क्यों कंसिडर करते हैं, राइट? ये फिर भी ये कहता है कि श्रिंकेज होगा। मैं क्यों मानूं कि श्रिंकेज होगा? अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, मैं तो कहता हूँ ऑब्जेक्ट ना भी हो, राइट?
rod is basically the apparatus to measure the distance. ओके, अगर ये सही है तो वो तो मैं शायद बिना ओ, ठीक है, फंडामेंटली आपको मैटर की जरूरत पड़ेगी, राइट। स्पेस को कंसिडर करने के लिए रिलेटिव सेंस में आपको एक स्पेसिफिक रॉड की जरूरत पड़ती है जो मैटर का रिप्रेजेंटेशन होता है, करेक्ट। वो ठीक है। जैसे आपको स्पेस रिप्रेजेंट करने के लिए मोशन की जरूरत पड़ेगी या मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेस और टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो दोज आर फंडामेंटल्स। वैसे मान लेते हैं कि रॉड की जरूरत पड़ेगी, बट व्हाई श्रिंकेज बिकम द फंडामेंटल है, राइट। अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि फिजिकल नेचर में एक ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है जो कि श्रिंक या फिर एक्सटेंड नहीं हो सकता है एज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट, तो मुझे ये क्यों मानना चाहिए? मैं इस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, राइट। तो मैं वो लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन वाले पॉइंट को ठीक से समझा नहीं, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो यहाँ पे ये डिफाइन करता है कि एक्सेलरेशन चेंजेस ज्योमेट्री ऑफ द मेजरमेंट्स। मैं तो इससे वैसे भी अलाइन नहीं हो पा रहा हूँ, सॉरी, राइट। देन आते हैं ग्रेविटी बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक एक्सेलरेशन। ये हम जानते हैं, ये हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हर एक सिनेरियो में ग्रेविटी एक्सेलरेशन की तरह ही बिहेव करती है, तो इसीलिए we are specifically saying gravity is acceleration changing its reference points। तो आपको ग्रेविटी हमेशा ही एक्सेलरेशन जैसी लगेगी, तो वो ठीक है, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। दैट इज करेक्ट। देयर इज नो एक्सपेरिमेंट available which can distinguish gravity from acceleration, ठीक है, aligned at least till this I'm aligned। This describes gravity as a force, हमने मान लिया है। Free falling objects feel no force, correct, ये भी बात सही है। Measuring rods and clock change in gravity, thought experiment clocks at different heights, clock lowering gravity feels run slower, measuring rods change length। अब ये जो है ना, ये मुझे समझना पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे, क्योंकि मैं इस चीज को सिर्फ मान नहीं सकता, और शायद आपको भी नहीं मानना चाहिए। We will connect together, we will try to understand कि आखिर ऐसा क्यों होता है। थैंक यू।